Is my voice audible? Yes, sir. Yes, Oh, sir. ठीक है. ओ अभी भी आ रहे हैं. Okay. So last time we have seen uh, what is called as a elementary transformation. So what are the elementary transformation? There are three types of transformation, that is interchanging of any two rows. Second is multiplying one or more rows by the scalar. And third type is by multiplying one row and add it to the another row. So that three type of transformation we have seen in this particular lecture in last time. Okay, today we are going to see the next concept. We have also solved one of the question from this. We have also seen this, how to show any matrix is orthogonal or not. What you have to do, you have to multiply with its transpose. If the answer is coming out to be the identity matrix, then it is orthogonal. If matrix you got is not identity matrix, then you say that it is not a orthogonal matrix. So next concept is inverse of a matrix. Inverse of a matrix क्या होता है? When you multiply matrix with its inverse, you will get identity matrix. So when A into A inverse should be equal to identity matrix, then we say that it is called as inverse matrix. Okay. Now, how to obtain inverse? There are two methods to obtain inverse. One is called by elementary transformation, and other is called by adjoint method. So there are two methods to calculate the inverse. One is elementary transformation and second is adjoint method. So first we will see how to obtain A inverse by elementary transformation, and then we will see how to calculate inverse of a matrix using adjoint method. Okay. So let me begin. So what is the question? Obtain inverse of given matrix A. A क्या दिया है? 6 1 1 2 minus 3 minus 1 minus 1 minus 7 minus 2. Okay, so this is the matrix A. What is your aim is to calculate inverse using, first we will see inverse using elementary transformation. So I will write over here. Okay, so first by using elementary transformation, okay. Next time please join as fast as you can. It is disturbing my lecture when you join late. A into A transpose or A inverse should be equal to identity matrix. So what we will do here,
we will convert this matrix A into identity matrix. I am just writing the equation. Okay, what is here? What is matrix A? 6, 1, 1, 2, minus 3, minus 1, and lastly minus 1, 7, minus 2. Is that correct, matrix A? Okay. Now, what you have to first do? You have to first convert this particular entry as 1. Okay. So, how to convert this entry as 1? I can change this third row with first row so that I will get minus 1. Okay. So, in this particular process, I am only going to perform row operation. You can also perform the column operation. For example, कॉलम 2 एंड कॉलम 1 इंटरचेंज किया तो भी मुझे मैट्रिक्स में एंट्री मिलेगा, बट बहुत सारे इसमें आपको सिर्फ रो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर इसमें मैं सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करूंगा. सो आई विल टेक दिस R1 interchange with R3. So if I do, what is the left hand side will become? थर्ड रो के साथ इंटरचेंज करना है. -1, -7, -2, 2, -3, -1, 6, 1, 1. A इनवर्स इज इक्वल टू, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो लेफ्ट साइड पे, वही सेम ऑपरेशन राइट साइड पे भी परफॉर्म करना है. मतलब R1 इंटरचेंज विथ R3. 0, 0, 1, R3 लिखा, 0, 1, 0, 1, 0, 0. So what I have done? I have transformed first row and third row, interchange किया. What is next operation you have to do? Using this, Control Z. Okay. So I have here -1. I have to convert it into +1. So what operation I need to perform over here? I am just expanding the page. कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे टू कन्वर्ट दिस एंट्री, फर्स्ट एंट्री इनटू +1? I have to just multiply it -1. Multiplication with scalar is possible. So -1 into R1. What does it give? हर एक एंट्री को निगेटिव साइन देंगे, साइन चेंज होगा सिर्फ. 2, -3, -1. All the remaining will be as it is. 6, 1, 1 into A inverse is equal to, again the same operation is performed on right hand side. 0, 0, -1, 0, 1, 0 and 1, 0, 0. Okay, let me admit the people. Okay, now using this entry I have to convert this entry into 0. ये दो एंट्री को 0 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? सिंस मैं R1 इज इक्वल टू 1, ये जो फर्स्ट एंट्री है 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा? R2 माइनस 2 टाइम्स R1 एंड R3 माइनस 6 टाइम्स R1. ये 2 एंड 6 कहाँ से आया? ये जो हाईलाइट किया हुआ है उससे आया. ओके,
नाउ कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स, परफॉर्म दिस ऑपरेशन. क्या होगा? फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 7 2. व्हाट इज दिस एंट्री? 2 minus 1, 2 minus 2, 0, minus 3. I will write over here minus 2 times 7. So what is the operation? Minus 3 minus 14, which is equal to minus 17. So ये वाला एंट्री क्या बनेगा? minus 3 minus 2 times 7 minus 17. So I will write over here minus 17. Okay. Next entry minus 1 minus 2 times 2, which is equal to minus 1 minus 4, which is equal to minus 5. So this is rough calculation. I have already told you, whenever you perform any rough calculation, you should erase that calculation. Okay. Now next क्या है? 6 times this. So let me perform this manually. क्या होगा? ये 0 होगा. This 1 minus 6 times 7. So 1 minus 42 minus 41, and lastly 1 minus 6 times 2 minus 11, correct, into A inverse is equal to, सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे भी परफॉर्म करना है आपको. क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज 0 0 minus 1. नेक्स्ट क्या होगा? टेल मी. 0 minus 0 0, R2 minus 2 R1 करना है. 1 minus 2 into 0, अगेन 1 रहेगा, and lastly R2 minus 2 R1, minus 2 into this is plus 2, so it will become 2. और नेक्स्ट क्या रहेगा? R3 minus 6 R1, so 1 minus 6 into 0, it will become 0. 0 minus 6 into 0, it will become 0, and lastly 0 minus 6 into minus 1, minus minus will become plus. So यहाँ पे क्या रहेगा? 6 रहेगा. Okay. Now what is next entry? Next thing you have to perform is make this entry equal to 1. ये एंट्री 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? -17 से डिवाइड करना पड़ेगा. So that is the best option. So I will write, in exam you will allowed to use calculators. So 1 by 17 minus into R2 gives, क्या होगा? So आप देख सकते हैं कि अगर आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, कितना डिफिकल्ट होता है ये. 0 1, ये 5 को क्या रहेगा? 5 by 17, और यहाँ पे एज इट इज रखो 0 minus 41 minus 11 into A inverse is equal to, राइट हैंड साइड पे भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है. 0 0 minus 1. ओके. 0 आपको क्या करना है? -1 by 17 से मल्टीप्लाई करना है. -1 by 17, और यहाँ पे क्या होगा? -2 by 17, और लास्टली एज इट इज 0 0 6. ओके. अभी ये आपका हुआ. सॉरी, मेरा एक मिस्टेक हुआ है. आई विल जस्ट करेक्ट इट.
इट इज 1 माइनस 6, सो इट इज 1. यहाँ पे 1 होना चाहिए. सॉरी फॉर दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट. अभी क्या करना है आपको, जैसे हमने ये 1 यूज करके बाकी दो एलिमेंट्स को 0 किया, वैसे ही हम लोग को ये 1 यूज करके बाकी दो एलिमेंट्स को 0 करना है. We have used this particular method in Gauss-Jordan. Have you remember converting this matrix into identity matrix by row transformation? आपने किया है ये. Next is what? R1 minus, sorry, 7R2 and R3 plus 41R2 gives. Okay, let me check whether कोई आया है कि नहीं. Okay. Okay, so let's perform this operation. हमेशा याद रखो कि वो इंट्रीज हमेशा 0 बनते हैं. हम लोग R2 का यूज कर रहे हैं, तो R2 का रो एज इट इज रहेगा 0 1 5/17. अभी R1 क्या चेंज होगा, R1 चेंजेस टू R1 minus 7R1 R2. So 1 minus 7 into 0 1, then 7 minus 7 into 1 0. अभी ये क्या बनेगा, ये थोड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करने को, रफ में कैलकुलेट करते हैं. 2 minus 7 times 5/17. इसका आंसर क्या होगा, 2 minus 35/17. So 34 cross multiply 17 into 2 minus 35 upon 17. आंसर क्या आएगा, -1/17. So that is your here -1/17. In exam calculators are allowed. Rough work erase करो. ओके. नेक्स्ट, ये थोड़ा टफ है. R3 plus 41 times R2. क्या आएगा आंसर, 0. ये भी 0 होगा. 41 minus 41 plus 41 0. और ये क्या होगा, ये थोड़ा टफ है. -11 प्लस 41 टाइम्स क्या है एंट्री, 5/17. Calculate this answer. I will just use calculator if possible. -11 -11 plus 41 times in bracket 5 divided by 17. Okay, it is 8.8235. no use. मुझे फ्रैक्शन में आंसर चाहिए. so that is -187. 41 5 कितना होता है, 4 5 20, 205 upon 17 which is equal to ये करो 13 plus 5 18. नहीं 18 नहीं, माइनस प्लस है ये 18. हाँ
ओके 18/17 is it correct? Let me check. ठीक है, so this is coming out to be 18/17. A inverse is equal to, सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे भी परफॉर्म करना है, तो ये क्या होगा, yes 0 minus 0 0. First I will write this row minus 1/17 and यहाँ पे -2/17. अभी फर्स्ट रो वर्कआउट करते हैं. 0 minus 7, so it is 7/17 and lastly यहाँ पे कितना आएगा, ये बहुत गंदा दिख रहा है, थोड़ा मैट्रिक्स बढ़ा लेते हैं. फर्स्ट मिडल रो लिखते हैं एज इट इज -1/17 और यहाँ पे -2/17. नाउ कैलकुलेट दिस R1 - 7 R2. 0 - 0 0 होगा, 0 minus 7 times 17, so it is 7/17 प्लस 7 होगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और ये क्या है, -1 माइनस 14, माइनस के जगह प्लस आएगा 14/17, so -17 plus 14 is -3, so it is -3/17. और लास्टली ये सब मैं इरेज कर लेता हूँ. थोड़ा बढ़ा लेते हैं. सो आप देख सकते हो कि इन्वर्स से कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना चाहते हो तो. So compute the last row now. 1 minus 0, so it is 1. 1 plus 0 is 0. Then 0 plus 41/17, so minus 41/17, and lastly 6 plus 41 into -2/17. so ये क्या होगा, 102 minus 82 upon 17 क्रॉस मल्टीप्लाई करके. सो ये क्या होगा, 20/17, राइट. सो यहाँ पे आंसर लिखते हैं 20/17. अभी एक ही ऑपरेशन बचा है. अभी क्या करना है आपको, ये वाला एंट्री जो है उसको 1 बनाओ और फिर बाकी सब एंट्रीज इससे 1 बनेगा. सो यू विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन. आई विल टेल यू द ऑपरेशंस. फर्स्ट यू परफॉर्म 17 17/18 into R3. Then you will make this entry 1, and using this entry as 1 you will make these two entries as 0, so that लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आइडेंटिटी मिलेगा और राइट हैंड साइड पे जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका इनवर्स होगा. ओके, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू. ओके, हेलो. यस सर. यस सर. सर 18/17 रहेगा ना.
नहीं 18/17 रहेगा तो हम लोग स्क्वायर मिलेगा ना, 18 मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको इससे तो 18/17 इंटू 17/18 विल बी इक्वल टू 1। उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, यहाँ पे ओके 17 था सर। तो 1/17 किया, वैसे ही समझो। तो ये जो 17 सर 17 हैंग आउट हो रहा है ना, ये उसका डिटर्मिनेंट है। आपको इनवर्स का फॉर्मूला पता है ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना वो नीचे आता है, क्योंकि वो फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करते हो एडजॉइंट को 1/a से तो आपको इनवर्स मिलता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो ये जो हैंग आउट हो रहा है ना आपका जो नंबर, वो उसका डिटर्मिनेंट है। तो आप देख सकते हो कि इनवर्स में हर एक टर्म के नीचे क्या है, 17 17 17। ये क्यों हैंग आउट हो रहा है, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा। ओके यस सर। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए सिखाया, बट कभी भी एग्जाम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि उससे बहुत क्या जाएगा, टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। आपको सिर्फ कितना मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को, 5 या 10 मिनट में आपको सॉल्व करना है अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करना चाहते हो। सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट इनवर्स is by the second method. What is the formula? You must have studied this formula in 12th. What is the formula? A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. If determinant of A is not equal to 0। 0. Okay. So एक example दिया है यहाँ पे, find the inverse of matrix by adjoint method if it exists. Okay. So इसको क्या करना है आपको, पहले एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले ट्रांसपोज लेंगे, फिर कोफैक्टर माइनस का मैट्रिक्स निकाल के एडजॉइंट निकालेंगे, राइट। सो पहले क्या किया, ट्रांसपोज किया। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। नाउ फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ माइनस। आप अगर जब निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। सो आपने अगर ये निकाला, फर्स्ट वाला टर्म कैसे आया, 4 इंटू -7 -28 -28 प्लस 30 प्लस 2। यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। सो अल्टरनेट साइन रहते हैं 3/3 मैट्रिक्स में। और साइन कैसे डिटरमाइन होता है, कोएफिशिएंट का जो टर्म रहेगा उससे साइन डिटरमाइन होगा, राइट। यस और नो। सो यस सर। let us take the example. So इन्होंने क्या किया, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाला तो 20 आया, 1/20 into whatever is the adjoint of A. Okay, so let us perform the one calculation. यहाँ पे एक्सरसाइज में 5 मैट्रिक्स दिए हैं, उसमें से एक लेके हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे। सो ये मैं घर पे वर्कआउट करूंगा, आगे आप भी वर्कआउट करो सॉल्व एग्जाम्पल 8 में। So let us take this inverse of given matrix using adjoint method. So what is the first condition? So solution, let us first find adjoint of matrix A. So what is adjoint of matrix A? पहले क्या करना है, पहले ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या आएगा, यू टेल मी। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम second column and third row will become third column, right. Then calculate the minors. What is first minor, M11। M11 का मैट्रिक्स क्या आएगा,
4 1 3 5. Calculate the determinant. 20 minus 3. 17. Okay. I will write the cofactor as well. A11 साइन चेंज नहीं होगा, क्या होगा? सेम साइन रहेगा 17. M12 सेकेंड माइनर. M12 कैसे निकालते हैं? ये 1 जो है उसका रो एंड कॉलम डिलीट करके -3 1 4 5. कैलकुलेट द सेकेंड. -15 -4. क्या आंसर आएगा? -19. अभी इसमें क्या करेंगे? ये माइनस है तो इसको क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे. क्यों पॉजिटिव बनेगा? क्योंकि हम लोग का जो इंडेक्स है A12 1 + 2 = 3. ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा. अगर इवन नंबर है तो साइन वही रहेगा 1 1. मतलब क्या है? 1 + 1 2. इवन नंबर साइन वैसे के वैसे रहेगा. ऑड नंबर साइन चेंज होगा. नेक्स्ट M13. M13 के लिए क्या करेंगे? टेल मी द मैट्रिक्स. -3 4 4 4 and 3. Okay. Tell me the determinant. -3 into 3 -9 और 4 into 4 16. -16 So -9 -16 क्या आएगा? -25 -25. अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? A13. A13 में क्या होता है? सम क्या होगा? 1 + 3 4. 4 है मतलब इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखना है -25. ओके. अभी नेक्स्ट करो. नेक्स्ट क्या है? M21. M21 क्या आएगा? 1335 1335. राइट. कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट. 5 - 9 -4. A21. A21 का साइन क्या आएगा? साइन चेंज होगा. यस. 4 आप मेरे साथ करते जाओ. M22. M22 क्या आएगा? 2 3 4 5. 2 3 4 5 क्या आएगा? ये 10 - 12. आंसर इज -2. व्हाट इज A22? -2 -2. क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि सम क्या है? 2 + 2 4. इवन नंबर. इवन नंबर में चेंज नहीं होता है, ऑड नंबर में चेंज होता है. M23. M23 क्या है? 2 1 4 3. 2 into 3 6 -4 which is equal to 2. A23 क्या आएगा फिर? -2 -2. क्यों साइन चेंज हुआ? क्योंकि इट इज 2 + 3 इज ऑड नंबर. नेक्स्ट इज M31. M31 क्या आएगा? डिलीट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. 1 3 4 1. कैसे किया मैं एक बार फिर से बताता हूँ. यू हैव टू M31 इज दिस एंट्री, राइट. इस एंट्री का जो भी रो है एंड कॉलम है डिलीट करने का. whatever is left you have to take. इसका माइक चालू है. आप जब आंसर करोगे तभी बोलना, नहीं तो मत बोलना. इट इज 1 - सर 12. M21 सही है क्या? एक बार देखिए ना. M21 ना. M21 क्या है?
-3 ना। रुको, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। M21 निकालना है आपको। M21 मतलब ये एंट्री, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसका रो एंड कॉलम डिलीट कर दो। क्या बचेगा? 1335। सो वही लिखा है 1335। फिर उसको डिटर्मिनेंट निकालोगे 5 - 9 विच इज -4। अभी यस सर, उसका समझा सर। हाँ, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट फॉर द 1 - 12 इज इक्वल टू -11। इसका साइन चेंज होगा क्या? 3 + 1 इज 4, इवन नंबर, ये साइन चीज चेंज है। नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? M32। अब मेरे पास मैट्रिक्स देखने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा फिर से। M32 क्या है मेरा? M32 2 3 -3। ओके। M32 ये डिलीट किया, ये कॉलम डिलीट किया। 2 - 3 3 1। ओके, 2 - 3 3 1, 2 - 3 3 1 which is equal to 2 minus -9, that is 2 + 9 which is equal to 11। A32 में साइन क्या होगा? चेंज चेंज होगा। होगा। 11 का क्या होगा? -11। देन यू हैव टू कंप्यूट M33 लास्ट एंट्री। M33 क्या है? 2 लेट अस 1 गो बैक टू द -3। आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स A ट्रांसपोज में। लास्ट रो M33 क्या एक बचेगा? 2 - 3 1 4। 2 - 3 1 4। 2 - 3 1 4 which is equal to 2 4 are 8, minus minus will become plus which is equal to 11। इसका क्या होगा? साइन वही रहेगा। वही रहेगा। A33 is equal to 11। so that's your final। so now क्या करना है आपको? ये जो एंट्रीज है वो आपको एडजॉइंट ए में लिखना है। so what is सर डाउट है। adjoint of A is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 then A31 A32 and A33। इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लेट अस चेक बैक अवर एंट्रीज। अपने पास A31 A32 A33 ऑलरेडी है, सो वो डायरेक्टली लिख देते हैं। -11 -11 11। अभी ऊपर का एंट्रीज देखते हैं क्या है? 17 19 -25। सो ये एज इट इज लिख देंगे 17 19 -25। ओके, A21 क्या है? 4 - 2 -2, माइनस। तो वो भी लिख देते हैं सर वो -4 आएगा ना। -2। एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्या आएगा? -4। डिटर्मिनेंट वैल्यू इज -4, बट आपका ये जो साइन है, साइन कन्वेंशन क्या है? अगर सम ऑड है तो साइन चेंज होगा।
अगर सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। सो ये सम क्या है, ये -4 है, सो ये क्या होगा, माइनस ऑफ -4। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या है आपका, अल्टरनेट इंट्रीज, इस पे प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, एंड अगेन लास्ट वाले में प्लस। अल्टरनेट साइन रहता है हमेशा। सो प्लस है मतलब एज इट इज आंसर लिखना है, माइनस है मतलब जो भी आंसर आए आपका M12 का उसको साइन में चेंज करना है। ओके, अंडरस्टूड। साइन कन्वेंशन याद रखो, सिंपल है, प्लस से स्टार्ट करके प्लस माइनस करते जाने का 3x3 में। ओके, ये शॉर्टकट है, बट ये 2x2 में अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि A12 के बाद A21 आता है, A21 का भी सम क्या है, ऑड नंबर है, सो दोनों में माइनस होगा। उसमें क्या साइन कन्वेंशन रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। समझा। तो ये स्पेशली Yes, sir. 3x3 के लिए आपको ये साइन कन्वेंशन रहेगा। और आपको अगर जनरल में चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स के लिए चाहिए, तो साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, ये जो टर्म्स है इसका जो इंडेक्स रहता है A11, सो उसका टर्म्स ऐड करने का, वो अगर इवन नंबर हुआ तो प्लस साइन, वो अगर ऑड नंबर हुआ तो माइनस साइन। इज दिस ओके, अंडरस्टूड। ये जो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका एडजॉइंट ए का प्रैक्टिस करो तो ही आपको आएगा। अभी आपको आगे क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या है मैट्रिक्स आपका, ओरिजिनल मैट्रिक्स लिखो, 2 -3 4। अभी इसमें एक ट्रिक है कि आपने अगर ट्रांसपोज का मैट्रिक्स भी इसमें डाला ना तो भी आंसर सही रहेगा। 2 -3 4, नेक्स्ट इंट्रीज क्या है 3, 1 4 3, 1 4 3, नेक्स्ट इंट्रीज क्या है 3 1 5, 3 1 5। Calculate the determinant, 2 times 20 -3, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सेकेंड का साइन क्या रहता है, माइनस रहता है, बट ऑलरेडी माइनस साइन है इसमें तो प्लस होगा। 1 × 5, 5 - 9, प्लस 4 टाइम्स, कैलकुलेट 1 - 12, which is equal to 2 × 17 is 34, 3 × -4 -12, और ये क्या रहेगा 4 × -1 -44। कैलकुलेट दिस, आंसर क्या रहेगा इसका, 56, 34 -10 -10 -22। Is this correct? Therefore, what is A inverse? A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A, which is equal to -1 upon 22 into this determinant 17 19 -25। कैलकुलेट एडजॉइंट क्या किया था, 4 -2 -2 -11 -11 and 11। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द आंसर। आप अगर चाहिए, अगर ये नंबर सिंपल है तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सो फर्स्ट एंट्री क्या रहेगा, -17/22, सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, -19/22, थर्ड एंट्री क्या रहेगा, 25/22। सो ये जो इंक्रीज रहता है ना,
वो आपको लास्ट टाइम जैसे मैंने सम सॉल्व किया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, वो जो हैंग आउट टर्म रहता है ना 17 17 17 डिवाइड में, वो इसकी वजह से आता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वजह से। अंडरस्टूड दिस प्रोसेस? ओके, तो आपको Yes, क्या sir. यहाँ पे लिखा है मैंने, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, यू कैन ऑल्सो यूज द मैट्रिक्स का जो अभी आपने सीखा ना adjoint method. In exam I will not ask you the method in which you will calculate the inverse. You can calculate by any method you want, okay, either by row transformation or by adjoint method. जो method आपको simple लगे उससे आप solve कर सकते हो, but मेरा मानो तो आपको, अगर आप जब adjoint से solve करते हो तो easy हो जाता है। okay? Okay, sir. सर 1 मिनट सॉल्यूशन दिखाइए ना। क्या ये? सर, इससे पहले वाला वो जो करे अपन। अच्छा 1 मिनट। हाँ, you can take screenshot whenever you want for your information. बेसिकली मैं ये जो पीडीएफ फाइल है ना, ये नोट्स फाइल सिर्फ इसमें ही शेयर होगा, ये जब आपका आईडीज वगैरह बनेगा तो, बट ये जो पीडीएफ फाइल है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। आफ्टर मैट्रिक्स का टॉपिक 1-2 टॉपिक बचे हैं उसमें, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बचा है, सॉल्यूशन बचा है, और एक आइगन वैल्यूज एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। सो वो जैसे फिनिश होता है वो मैं आपको वैसे बता दूंगा, ठीक है? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होता है ना, ये सब जो डेफिनेशन है इससे अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे रैंक तो बहुत मुश्किल होगा। आई विल टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन फर्स्ट। अगर आपका कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का क्या करेंगे वो बाद में देखते हैं, पहले आप देखो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब सब एंट्री जीरो होता है तो जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, एक भी एंट्री अगर नॉन जीरो है तो वो क्या बोलेगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स। ओके, देन द इंटीजर आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स if it satisfy these two conditions. What are the two conditions? First condition, there exists at least one minor of order r of a which is non-zero. मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपने r बाय r मैट्रिक्स लिया, उसमें से माइनर मतलब क्या, उसमें से कुछ रोज एंड कॉलम्स डिलीट करके जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या बने बोलेंगे हम उसको, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी तक 3x3 मैट्रिक्स लिया था हमने, तो उसमें हमने क्या किया था, मोस्टली 1 रो डिलीट किया था, 1 कॉलम डिलीट किया था, m11 m22। सिमिलरली यू कैन डिलीट 2 रोज एंड 2 कॉलम्स और 2 रोज और 1 कॉलम। सो जो भी मैट्रिक्स आपको मिलता है बाय डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, नॉट नेसेसरीली ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम, कोई भी मैट्रिक्स में, तो आप उसको क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। ओके, अगर कोई भी एक माइनर आपको मिला जो नॉन जीरो है आर का, और उसके आगे के हर एक माइनर जीरो होंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन से अगर कैलकुलेट करने जाओगे ना, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये 5x4 मैट्रिक्स है। ओके, उसमें हाईएस्ट पॉसिबल 4 स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मिलेगा, 4x4 मैट्रिक्स। वो 4x4 मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, कोई भी एक कॉलम डिलीट करके मिलेगा, राइट? अगर 5x4 मैट्रिक्स है, सॉरी 4x5 मैट्रिक्स है, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, तो एक कॉलम डिलीट करके ही हमको 4x4 मैट्रिक्स मिलेगा, राइट? सो ऐसे कितने मैट्रिक्स मिलेंगे, मुझे एक फर्स्ट कॉलम डिलीट करूंगा तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, सेकेंड कॉलम डिलीट करूंगा तो दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा। सो ऐसे 5 माइनस मिलेंगे मुझे 4x4 के। मुझे हर एक का डिटर्मिनेंट चेक करना है 4x4 का, और 4x4 का डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, वैसे ही फर्स्ट एंट्री इनटू उसका माइनर,
माइनस सेकेंड एंट्री इंटू उसका माइनर, माइनस थर्ड प्लस थर्ड एंट्री इंटू उसका माइनर, ऐसे ही करते जाएंगे। सो वो कितना टाइम लेगा, कंज्यूमिंग होगा, आप सोचो। सो ये क्या बोल रहा है कि अगर 4x4 का मैट्रिक्स का अगर आपको कोई भी एक मैट्रिक्स ऐसा मिला जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसका रैंक क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो आप क्या करोगे, 3/3 के माइनस लोगे। अभी 3/3 का मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, 2 कॉलम और 1 रो डिलीट करके। तो ऐसे कितने सारे पॉसिबिलिटीज होंगे, बहुत पॉसिबिलिटीज होंगे। So calculating rank by this definition of a rank of matrix is very tough. Okay? So मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस समझाया कैसे टफ होता है ये, कि अगर सपोज मुझे A कितना है मैट्रिक्स का एंट्री, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। ओके, तो मैं क्या करूंगा, we select all 4 rows and we select any 4 columns, then find the determinant of A. So जो 4x4 मैट्रिक्स मिलेगा ऐसे 5 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट कॉलम डिलीट कर सकते हैं, सेकंड कॉलम डिलीट कर सकते हैं, थर्ड डिलीट कर सकते हैं, फोर्थ डिलीट कर सकते हैं, 5 डिलीट कर सकते हैं। उसमें से एक का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहा तो रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 4। अगर सभी ये जो फर्स्ट सिलेक्शन है वो अगर जीरो है, देन विल सिलेक्ट अदर 4 कॉलम, मतलब ये 5 बार करना पड़ेगा 4x4 के लिए, एंड देन वी हैव टू रिपीट दिस स्टेप 1। जब तक हमको नॉन जीरो नहीं मिलता तब तक आपको स्टेप 1 रिपीट करना है। ओके, सो अगर ये पांचों में से एक का नॉन जीरो मिला तो रैंक क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अगर सबका जीरो हुआ तो ये थर्ड स्टेप परफॉर्म करना है। अगर सब 4x4 मैट्रिक्स जितने भी पॉसिबल है, ऑल ऑप्शंस जितने भी पॉसिबल है, उससे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 मिल रहा है तो आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे ऑर्डर, 3/3 मैट्रिक्स लोगे। अगर एक भी 3/3 का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका रैंक क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द पॉसिबिलिटी का डिटर्मिनेंट। ओके, सो ये जो प्रोसेस जो है मैंने ये बताया है, ये बहुत टीडियस है। ओके, ये हमेशा ये 2 चीजें याद रखो, ये प्रॉपर्टीज है। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में नॉन जीरो मैट्रिक्स बोला है। अगर कोई जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन रैंक क्या होगा उसका, R होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सेम एज रैंक। ओके, बट ये जो प्रोसेस है ये मैंने जैसे बताया बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। ओके, कैलकुलेटिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट इज टीडियस टास्क टू डू। सो देयर इज ऑलवेज अ सिंपल वे। व्हाट इज दैट सिंपल वे, इज कॉल्ड रो इक्वलन फॉर्म। सो हमेशा हम जो रैंक का मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, रो इक्वलन फॉर्म से। और ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है उससे रैंक नहीं निकालेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we'll stop here. Any doubt in this lecture? सर No, वन sir. से जा सकते हैं आप, सर स्क्रीनशॉट लेना है। क्या, कौन सा सर स्क्रीन पे? 1.6 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैं सेंड करूंगा, ओके, ये जो पीडीएफ फाइल है वो सेंड करूंगा, डोंट वरी। जब आपका पूरा कंप्लीट होगा ना मैट्रिक्स का टॉपिक, आई विल सेंड दिस पीडीएफ। ओके, ठीक है, और कोई डाउट? No, sir. No doubt. ठीक है, so we'll No, stop sir. the Thank you. lecture. We'll stop the lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.
Bye. sir. Bye, sir.